ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو کائنات کا خالق اور مالک. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی حیثیت سے بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. برادران اسلام، آج کا جو دن ہے وہ بڑا ہی بہترین اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازشوں کا، انعامات کا، اللہ کی اکرامات کے نازل ہونے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر انسان خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس دن کو ہماری خوشی کے لیے بنایا ہے. ساتھ ہی یہ اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی کس طریقے سے عبادت کی ہے، جس طریقے سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے. آج اس کے صلہ کا دن بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین آج اپنے بندوں سے خوش ہو کر اپنے بندوں کے اوپر انعامات نازل فرماتا ہے. اور جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، توبہ استغفار کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم روتے رہے، بالکل اب اسی طریقے سے ہمیں اپنی پوری زندگی کو گزارنا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے ایسے لوگوں کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری کا مزہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے، تجھے کسی طرح کا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کی دہشت اپنے دل کے اندر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے. وہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، پھر اس کے بعد پوری زندگی انہی کاموں کے اوپر گزار دی، یعنی بقیہ 11 مہینے بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اندر وہ انسان گزارتا رہا. ایسے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا مزہ سنا دیا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ نے مثال دی ایسے لوگوں کی جو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شیطانوں کو اللہ رب العالمین نے قید و بندش سے آزاد کر دیا، تو انسان شیطان کے بیٹھے میں آ کر اللہ رب العالمین کو بھول گیا. تو اللہ نے فرمایا
कैसे लोगों की तरह से मत हो जाना, कैसे बुढ़िया की तरह से मत हो जाना कि जो पूरी रात को अपना सूत काटती रही, बड़ी मेहनत के साथ में अपने धागे को जिसने काटा और सुबह होते ही अपने पूरे बुने बुनाए धागे को जिसने बिखेर करके रख दिया। यानी कहीं ऐसा मत कर देना कि पूरे महीने तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ में गुजारा, लेकिन अब ईद के बाद अपनी जिंदगी को शैतान के हवाले मत कर देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नसीहत की है और ऐसे लोगों के लिए ही अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है जो अपनी जिंदगी को राह रास्त पर रखते हैं। क्योंकि रमजान का महीना ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग का महीना था। ये रमजान मुबारक कितना बड़ा फजीलत वाला महीना था कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमजान के महीने के रोजे रखे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम उसी महीने से गुजरते हुए आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद एहसान और उसका शुक्र और उसका फजल करम है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें खूब की, हमने फरमाबरदारी की, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तौबा इस्तिगफार किया, लेकिन अपनी आगे आने वाली जिंदगी को बिल्कुल उसी के मुताबिक गुजारना है, तब जाकर के हम कामयाब और कामयाब हो पाएंगे। और वैसे भी आज का दिन जो ईद उल फित्र का दिन है, ये हमसायगी का, भाईचारगी का दिन है। ये ऐसा दिन है कि जिस दिन इंसान को अपने तमाम किस्म के गिले शिकवे शिकायत भुलाकर एक दूसरे के गम का बांटने वाला और हमदर्द बन जाना चाहिए। क्योंकि आज का दिन हमदर्दी वाला दिन है। आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन दुश्मन को भी अपना लेना चाहिए, यानी प्यार और मोहब्बत का दिन है, भाईचारे का दिन है, मिलनसारी का दिन है। और हमारा मजहब इस्लाम वैसे भी हर इंसान को भाईचारगी की तालीम देता है, एक होकर के रहने का हुक्म देता है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान और हदीस के ऊपर जम जाओ, क्योंकि और हमारे एहसान को मानो कि हमने इसी कुरान की बदौलत हमने तुम्हारे लोगों के, हमने तुम्हारे सबके दिलों को एक कर दिया, तुम्हारी बुग़्ज़ अदावतों को, तुम्हारी नफरतों को हमने खत्म कर दिया और तुमको एक झंडे के नीचे हम ले आए। यानी अल्लाह का एहसान है कि जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हम एक हो जाए। और जिस तरीके से हमने रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह की इबादत की थी, नमाजें पढ़ी थी, उस क्रम को भी हमें जारी रखना है। क्योंकि नमाज वो चीज है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना वला मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलहा सलहत साइरु अमलिही व इन फसदत फसदा साइरु अमलिही। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि नमाज वो अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल करेगा। अगर वो सही निकली तो बाकी सारे अमल भी सही निकलेंगे। अगर नमाज हमारी खराब हो गई तो हमारे सारे अमल बेकार और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी पूरी जिंदगी नमाज के ऊपर करनी है और हमदर्दी भाईचारे के साथ जिस तरीके से हमें हमारे नबी ने तालीम दी है, हमें उस तरीके से हमदर्दी के साथ रहना है। बस एक हदीस के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, कोई भी उसने की कोशिश ना करे। एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया। मैं हमदर्दी और भाईचारगी की, मेहमान नवाजी की मिसाल आपको सुनाना चाहूंगा कि मजहब इस्लाम किस तरह की हमें हमदर्दी करने की हमें हुक्म देता है और किस तरीके का हमें दर्श देता है। अल्लाह के नबी के पास एक यहूदी आया और उसने अल्लाह के नबी से कहा, ए मोहम्मद, क्योंकि वो अल्लाह के नबी को रसूल तस्लीम नहीं करता था, इसलिए उसने आपका नाम लिया और कहा कि या मोहम्मद, ए मोहम्मद, मेरा इस मदीने के अंदर कोई भी नहीं है, मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे पनाह दीजिए, आप मुझे अपना मेहमान बना लीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम को अपना मेहमान बना लिया। सिर्फ मेहमान ही नहीं बल्कि उसके लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त किया, बेहतरीन खाना तैयार करवाया और फिर उसके बाद उसे अपने खास बिस्तर पर लेटने का आपने हुक्म दिया कि मेरे बिस्तर पर लेट जाइए, जबकि आपके पास सिर्फ एक ही बिस्तर था।
आप नीचे जमीन पर लेट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कौनैन का सरदार जमीन पर लेटा हुआ है और अपने बिस्तर पर जिसने को जगह दे दी है कि ये मेरा मेहमान है और उसके कहीं ऐसा ना हो कि इसे सोने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे इसका मुआवजा ना कर ले कि मोहम्मद मेरा एक बंदा तेरे पास मैं तेरा मेहमान बन करके आया था, तूने उसके साथ कैसा सलूक और कैसा बर्ताव किया। अल्लाह के नबी ने हर तरह के उसके ऐशो आराम का लिहाज रखा और आपने अपना बिस्तर उसके हवाले कर दिया, उसको सुला दिया और खुद जमीन पर लेट गए। ये थी कौनैन के सरदार की शान। और होता यह है कि उस रात उस यहूदी ने ज्यादा खाना खाया, बेहतरीन खाना था तो वो खाना ज्यादा खा गया और रात के वक्त जब उसे कज़ाए हाजत की जरूरत हुई, बैतुल खला की लैट्रिन की जरूरत हुई, तो उसने वहीं बिस्तर पर ही पाखाना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर पाखाना कर दिया। और सुबह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जा चुके थे, आप क्योंकि रात में क़यामुल लैल करते थे, वो यहूदी ने देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, फौरन चुपके से वहां से निकल करके भाग गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने कमरे में आए, हुजरे में आए, तो देखा कि ये बिस्तर खराब पड़ा हुआ है और वहीं एक उस यहूदी की ज़िरे और तलवार वहीं रखी हुई है जिसको जल्दबाजी में वो वहीं छोड़ करके चला गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उस बिस्तर को, उसकी गंदगी को साफ कर रहे हैं, किसी की आपने मदद नहीं ली, अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। जब रास्ते में उस यहूदी को ख्याल आया कि तेरी तलवार और तेरी ज़िरे वहीं रह गई है, फौरन डरता हुआ आया, डरता छिपता छिपाता आया कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, अगर किसी ने देख लिया तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वो आया, उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसकी गिलाजत को, उसकी गंदगी को साफ कर रहे हैं, उससे रहा नहीं गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो कहा कि ऐ मेरे मेहमान, क्या मुझसे कोई कमी हो गई? क्या मुझसे तुझे कोई शिकायत थी? अगर तेरे पेट में कोई खराबी थी तो तू मुझसे कहता, मैं तेरी मदद करता, और जब तूने गंदगी कर दी तो कम से कम मुझे अगर तू बता करके जाता तो मैं तेरा इलाज भी करवा देता। ये थी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि आपने शिकायत नहीं की कि तूने ये गंदगी क्यों फैलाई, इसको साफ कर, नहीं, अपने हाथों से आपने सफाई की। जब अल्लाह के नबी के अखलाक को यहूदी ने देखा तो फौरन कह पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ मोहम्मद, मैं यहाँ पर आपके पास आपको परेशान करने के लिए आया था, और जब मैंने आपके इन अखलाक को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और अब मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। तो यह है हमारे इस्लाम मजहब की शान कि गैरों के साथ भी हमदर्दी का बर्ताव करता है, तो हमें भी अपना वही बर्ताव करना है जिसकी तालीम हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो उसी के साथ हम आज के दिन अपने भाइयों के साथ साथ अपने जो दूसरे भाई हैं, बिरादराने वतन हैं, उनका भी ख्याल रखें, उनसे भी मिलजुल करके रहें, क्योंकि ये ईद का जो हमारा त्योहार है वो भाईचारगी का हमें दर्श देता है। किसी से कोई नाइतफाकी नहीं करनी है, किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला है, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला नहीं है, वो तमाम आपस में एक दूसरे के भाई भाई है। क्यों? क्योंकि सब एक आदम और एक हव्वा की औलाद है। इसलिए हमें उसी हमदर्दी और भाईचारगी के साथ रहना है और अपने मजहब के, अपने देश के अंदर जो भी तासुब परस्ती की लहरें चल रही हैं या इनाद परस्ती जो चल रही हैं, इन इनाद परस्ती की लहरों को अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत के बलबूते पर उनको बुझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्यार मोहब्बत के अंदर बहुत बड़ा जुर्म हुआ करता है, जिसकी मिसाल हमें अल्लाह के नबी की जिंदगी से मिलती है, सहाबा किराम की जिंदगी से मिलती है। क्योंकि लड़ाई का इलाज सिर्फ लड़ाई नहीं होता, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ बड़े बड़े फितनों को खत्म किया जा सकता है। हमें अपनी उसी के साथ, उसी के मुताबिक हमें अपनी तारीख को दोहराना है और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके की जिंदगी को गुजारना है। अब बस सिर्फ एक बात कहनी है कि एक हदीस अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मन साम रमजाना सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जिस इंसान ने रमजान के महीने के रोजे रखे और उसके बाद में 6 रोजे शव्वाल के और रख लिए,
काना का सियाम दहर, वो इंसान ऐसा है जैसा कि उसने पूरे साल के रोजे रखे हो। तो इसलिए हमें इस महीने के अंदर 6 रोजों को भी रखना है। अब आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि बारे ना तो हम मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा, आपस में उखुवत और भाईचारगी पैदा फरमा, आपस में एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा। ऐ बारे ना हम मुसलमानों में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मजबूर हैं उनकी मजबूरियों को दूर फरमा, जो मकरूज हैं गैर से उनके कर्जों की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। है बारिल्लाह जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं तो तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत के फैसले फरमा। है बारिल्लाह इस दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी फितने खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ भी बुग़्ज़ इनाद की लहरें चल रही हैं, ए बारिल्लाह तो उन तमाम फितनों फसादात को खत्म फरमा दे। ए बारिल्लाह पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ए बारिल्लाह मोहब्बत को आम फरमा दे, मोहब्बत को फैला दे, बुग़्ज़ व अदावतों को, नफरतों को दूर फरमा दे। ए बारिल्लाह हमारे देश इस हिंदुस्तान के अंदर भी पहले जैसा माहौल नहीं रहा, अब बहुत ज्यादा इनाद परस्ती की लहरें चारों तरफ से उड़ती हुई महसूस होती हैं। हम है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे इस देश को भी अमन का गहवारा बना दे, अमन और शांति का गहवारा बना दे। ए बारिल्लाह हमारे इस देश के अंदर सुकून पैदा फरमा। हमारे इस देश के अंदर ए बारिल्लाह तो सुकून पैदा फरमा, आपस में इत्तिफाक व इत्तेहाद पैदा फरमा। ए बारिल्लाह चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हों, सबको एक दूसरे का ख्याल करने की और सबको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तो हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।